Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about all the topics that we have discussed in this week, and this is chapter number 21, and the topics are embryo development, gastrulation, neurulation, development control, cellular determination and induction. There is one N is extra in this induction. Okay, embryonic development. Now what is embryonic development? After fertilization, the first stage which is occur, it is embryonic development. Now embryo start developing. Okay, after fertilization the first thing is zygote. In zygote there is some division, mitotic division will be occur, and finally the embryo is formed. What is embryonic development? Embryonic development is when the embryo is formed and developed. It starts after fertilization. You know that the zygote start dividing, and this process is called embryogenesis. Embryo mean embryo and genesis mean formation. The embryo formation will be occur in this process. Okay, the first step in this embryonic development is cleavage. In cleavage mean cutting, and like this there is some curve will be occur and cells start dividing, and cleavage is the first stage of embryonic development. In this stage the cells start divide and each with the exact gene in the zygote. Means कि जितने जो है वो मदर के अंदर जीन्स होते हैं वही ऑफस्प्रिंग के अंदर भी जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं. जैसे क्रोमोसोम्स का जो है वो आप लोगों को पता है सेम नंबर जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है. अब यहाँ पे देखें कि इट स्टार्ट डिवाइडिंग. सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, ओवरी से जो है जब एग निकला तो एम्ब्यूला के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ये डिफरेंट स्टेप से जो है वो गुजरे. ठीक है, ज़ाइगोट जो है वो फॉर्म हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, एंड देन इट स्टार्ट डिवाइडिंग. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 cells, एंड देन these 2 cells are further divided into 4 cells. These 4 cells are further divided into finally 16 cells. When 16 cells are formed, this stage is called morula stage, and it is like berry shape. It have berry shape like structure, and then this morula is further divided into blastocyst. And now blastocyst have 2 parts. The first one is trophoblast. This here it is shown. The outer layer of cell is called trophoblast, and the inner mass of cell is inner side cell of mass is present, which is present in its cavity. This is the final stage of cleavage, and after cleavage it start implanted into the uterus. यहाँ पे जो है ये फॉर्म हो गया. नाउ नेक्स्ट इज इट इज स्टार्ट इम्प्लांटेड हेयर. This is the endometrium. Endometrium is the inner layer of uterus. Now it is implanted in endometrium and start growing. It will remain here till delivery. Okay, what is after cleavage? There is the process of gastrulation. What is gastrulation? Gastrulation is a process in which the 3 layers are formed. Which are these layers? The ectoderm, endoderm and mesoderm. These 3 layers are formed in the process of gastrulation, and there is then their function are diagnosed, identified कि जो कौन सी लेयर जो है वो कौन सा आगे जो है वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो फॉर्म करेगी. ठीक है, अब यहाँ पे जो है गेस्ट्रुलेशन का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब सबसे पहले जो वो प्रिमिटिव स्ट्रिक की फॉर्मेशन होगी. प्रिमिटिव स्ट्रिक इज़ अ ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर. वो फॉर्मेशन होगा और फिर उसके साथ जो है वो डिफरेंट लेयर जो है वो भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी. अब डिफरेंट लेयर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं. इसमें जो सबसे पहले आ जाती है वो एक्टोडर्म है. एक्टोडर्म जो है वो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है एम्ब्रियो की, और एक्टोडर्म क्या कर रही है? एक्टोडर्म हर लेयर का जो है वो अपना इम्पोर्टेंट फंक्शन है. ठीक है, अब एक्टोडर्म जो है वो स्किन बना रही है. ठीक है, एपिथेलियल सेल्स बनाएगी ना, फिर वो आगे स्किन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे. इसके अलावा नर्वस सिस्टम जो है वो बना रही है. नर्वस सिस्टम के अलावा नर्वस सिस्टम में फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम all are included. The pituitary gland and adrenal medulla, jaws teeth, ये सारी चीज़ें जो एक्टोडर्म बना रही है. नेक्स्ट इज मेसोडर्म. मेसोडर्म जो है वो कुछ मस्कुलर सिस्टम जो है उनको डेवलप कर रही है अलॉन्ग विद इट सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक सिस्टम, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और रिप्रोडक्टिव में भी जो है वो ना कुछ जर्म सेल जो आ जाते हैं उनकी प्रोडक्शन जो है ये मेसोडर्म नहीं करी. एंडोडर्म में जो है वो फिर आ जाती है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. वो सारी चीज़ें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेट करी हैं एंडोडर्म उसमें हेल्प करेगी.
और रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी मतलब कि मीज़ो, और इसमें जो है वो थोड़ा सा वो मिक्सचर आता है कि ये इस कुछ पार्ट वो बना रही है मीज़ोडर्म और कुछ जो है वो एंडोडर्म बना रही है। अलॉन्ग विद थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड भी जो है वो एंडोडर्म उसकी फॉर्मेशन करेगी। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। ओके, अब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो क्लीवेज वाला जो प्रोसेस है वो फर्स्ट वीक में हो रहा था, फिर सेकंड वीक में जाके इम्प्लांटेशन हुई, थर्ड वीक में जो है वो प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन हुआ। गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो उसका एम्ब्रियो का जो साइज़ है वो 2 mm तक जो है वो हो जाता है, ठीक है। वो जो प्रिमिटिव स्टिक है उसके अंदर नोटोकार्ड की फॉर्मेशन होती है ना, वो उसको स्टैंडिंग में जो है वो हेल्प करता है। तो वो स्टैंडिंग वाली जो उसकी पोजीशन होती है उससे ईजिली जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ अब इसका जो है ये इतना जो है वो साइज़ हो गया है। तो वो उसका साइज़ जो है वो मेजरेबल है, वो 2 mm है, ठीक है। अब यहाँ तक जो वो फॉर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस न्यूरलेशन आ जाता है। न्यूरलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब विल बी अकर, ठीक है। इस प्रोसेस में न्यूरल ट्यूब बनेगी फिर उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंड फर्दर ऑन। न्यूरलेशन में जो है वो सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है, ये कौन सी लेयर होगी, सबसे ऊपर जो दी हुई है ये एक्टोडर्म लेयर होगी, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में ये हेल्प कर रही है। एक्टोडर्म लेयर विल स्टार्ट थिक, ये थिक होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी, प्लेट लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बना लेगी। न्यूरल प्लेट जिसको हमने नाम दिया है, ठीक है। न्यूरल प्लेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो है न्यूरल ग्रूव। ये देखिए ये थोड़ा सा जो है वो बेंड हो चुके, थोड़ा ग्रूव लाइक जो है वो उसने स्ट्रक्चर बना लिया। ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हुई है, न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन हुई है। न्यूरल ग्रूव के बाद जो है नेक्स्ट जो आ जाता है वो है न्यूरल फोल्ड। अब फोल्डिंग जब उसमें थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है तो उसको न्यूरल फोल्ड का नाम दे देते हैं। और न्यूरल फोल्ड के बाद जो है वो फाइनली क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ट्यूब जो है वो सेपरेट होगी। अब ये ट्यूब जो है वो ऊपर वाली लेयर सेपरेट होकर उसमें पूरी जो ऊपर वाली लेयर जो है वो रीजनरेट होकर अपने साथ अटैच होगी, और ये जो नीचे है वो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब जो है वो फॉर्म होगी। अब इससे जो है वो आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो फॉर्म होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आते हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं एंड हेल्पिंग इन सम नॉन न्यूरल सेल्स। अब इसके बाद जो आ जाता है वो है डेवलपमेंट कंट्रोल। डेवलपमेंट कंट्रोल क्या है कि यहाँ पे ये सारा जो फॉर्मेशन हो रही है, नर्वस सिस्टम बन गया, गैस्ट्रुला बन गया, इस सब को जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा है। ये सारी डिवीजन कहाँ पे हो रही हैं, ये सारी डिवीजन जो है वो सेल के अंदर हो रही हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट डिवीजन हुई हैं, तो डेफिनेटली फिर सेल्स ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, वो जो है वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब एक सेल जो है वो एक सेल के अंदर जो है वो बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हर तरह के जीन्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो सप्रेसिव होते हैं, कुछ एक्सप्रेसिव होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ मार्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स। मार्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स जो है दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और वो जो है वो डिफ्रेंशिएशन में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रोल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे वो इसका जो है वो रोल बताएं। न्यूक्लियस का तो रोल जो है वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि इसमें जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि 2 जो है वो स्पीशीज़ ली थी एल्गी की, एसिटेबुलेरिया मेडिटेरिया एंड एसिटेबुलेरिया क्रिनुलेटा। उनकी जो है वो कैप को सेपरेट कर दिया गया था, उनकी जो हेड थी या कैप उसको सेपरेट किया था और उसको थ्रो कर दिया, ठीक है। वो कहीं भी जो है उनको जो है वो दे विल बी थ्रोन अवे। और नेक्स्ट स्टेप में उनकी स्टॉक को कट करके अल्टरनेट कर लिया था। मेडिटेरेनिया की स्टॉक जो है वो किस पे लगा दी थी, कैरिनुलेटा पे, और कैरिनुलेटा की जो स्टॉक है वो किस पे लगा दी थी, मेडिटेरेनिया पे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, साथ साथ जो है वो उसकी ऑब्जर्वेशन होती रही, उसको जो है वो साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते रहे। तो उसके बाद जब फाइनली जो चीज़ फॉर्म हुई आपके पास, वो क्या हुआ, मेडिटेरेनिया जो है उसने अपनी ही कैप जो है वो प्रोड्यूस की थी। आल्दो उसके पास जो है वो किसकी आई थी, उसके पास जो है वो कैरिनुलेटा की स्टॉक लगी थी उसके ऊपर, लेकिन उसने कैप अपनी प्रोड्यूस की। और कैरिनुलेटा जो है उसने अपनी वो श्रिंकेज फॉर्म वाली इरेगुलर सी जो शेप है वो फॉर्म की, ठीक है। क्यों, स्टॉक तो उनकी चेंज हुई थी लेकिन उन्होंने कैप अपनी फॉर्म की। इसकी रीज़न ये थी कि उनके पास जो है वो न्यूक्लियस अपना अपना ही था, तो न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो न्यूक्लियस में जो है वो प्रोडक्शन उनकी वजह से होगी। यहाँ पे रोल ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के रोल में क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो इस स्टेप में देखें क्या हुआ है कि यहाँ पे ये कंट्रोल एग, यहाँ पे ग्रे रीजेंट एक ये मैटर सा आ जाता है, इसको इसकी जो है वो सेपरेशन की यहाँ पे, ठीक है।
और दूसरे स्टेप में ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये थ्रेड जो है इससे इसको कर्व कर दिया। सेल एक ही है, सेल के अंदर डिवीजन नहीं हुई, सेल को थ्रेड से जो है वो फोल्ड करके उसके 2 पार्ट बना दिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ग्रे क्रिसेंट जो है वो इसमें एक साइड पे आ रहा है, ठीक है, और इसमें जो है ये ग्रे क्रिसेंट इसको भी उसी तरह से डिवाइड किया, लेकिन इसमें ग्रे क्रिसेंट दोनों के अंदर आ रहा है। जब ये दोनों के अंदर आ रहा है तो इट्स मीन यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी आगे 2 एम्ब्रियो फॉर्म होंगे, ठीक है। 2 एम्ब्रियो, ये 2 लार्वा क्यों फॉर्म होंगे? क्योंकि यहाँ से जो है वो माइग्रेशन हो रही है, यहाँ से एक न्यूक्लियस पहले दूसरे पोर्शन में जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो बाकी भी न्यूक्लियस जो है वो जाते जाएंगे और फिर वहाँ पे डिवीजन और सेल्स और वो सारी चीज़ फॉर्मेशन होगी और उतने 2 यहाँ पे जो है वो 2 एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रे क्रिसेंट जो साइटोप्लाज्म का पार्ट था वो दूसरे में ट्रांसफर हुआ। और यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी उसी तरह थ्रेड से जो है उसको कर्व किया, लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ गया कि ग्रे क्रिसेंट एक ही साइड पे आया। तो ग्रे क्रिसेंट एक ही साइड पे आया तो फिर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, ये जो लार्वा डेवलपमेंट होगी वो एक ही होगी, क्योंकि दूसरी साइड पे ग्रे क्रिसेंट नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रे क्रिसेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म जो है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसके लिए, ठीक है। Next, embryonic induction. What is embryonic induction? When the one group of cell induce other group of cells, this is called embryonic induction. वन ग्रुप ऑफ सेल जो है वो दूसरे को इंड्यूस क्यों करते हैं? बिकॉज दे डिटरमिन देयर फेट, उसकी फेट के बारे में बताते हैं कि उसकी आगे क्या लक है, उसने आगे जाके क्या करना है, कौन से सेल्स बनाने हैं, उसने जो है वो कौन से जो है वो आगे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करनी है। तो इस वजह से वो एक दूसरे को जो है वो क्या करते रहते हैं, इंडक्ट करते रहते हैं, ठीक है, उनको इंड्यूस करते रहते हैं। अब इसमें प्राइमरी इंडक्टर भी आते हैं और सेकेंडरी भी आते हैं। प्राइमरी इंडक्टर वो होते हैं जो फर्स्ट ग्रुप होता है जो दूसरे को इनिशिएट करता है या इंड्यूस करता है, उसको प्राइमरी इंडक्शन बोलते हैं। और इसी तरह सेकेंडरी वो होते हैं जो उनको एक दफ़ा इंड्यूस कर लिए फिर आगे वो दूसरे तीसरे को जो है वो करते रहते हैं, ठीक है, ये फिर आगे सेकेंडरी इंडक्शन आ जाते हैं। अब इसमें इसको भी जो है वो प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। जिस तरह से ये देखें, सैलामेंडर पे ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसमें डॉर्सल लिप यूज़ की है, ठीक है। डॉर्सल लिप क्या होती है? ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है जिसको ब्लास्टोपोर भी बोला जाता है। इसके साथ जो है वो ये फॉर्मेशन कर होता है आगे नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप करने में, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म जो है, इसकी ये जो कर्व सी आपको नज़र आ रही है डब्ल्यू शेप, ये क्या है? डॉर्सल लिप है। इसको कट करके दूसरा जो ऑर्गेनिज्म था, ये इसकी ऑलरेडी जो है वो डॉर्सल लिप थी ना, तो इसने क्या किया कि इसकी डॉर्सल लिप लेके इसमें इंसर्ट कर ली। तो 2 डॉर्सल लिप होगी ना इसकी, 2 डॉर्सल लिप होने की वजह से इसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुई वो 2 हुई। अब इसकी क्या रीज़न है 2 डेवलपमेंट क्यों हुई? क्योंकि 2 डॉर्सल लिप आ गई थी। तो एक डॉर्सल लिप का जो ग्रुप ऑफ सेल्स था या जो टिश्यू थे, उन्होंने आके दूसरे के अंदर जो है वो दूसरों को भी इंड्यूस करना शुरू कर दिया। दूसरे कुछ सेल जो स्लीपिंग थे उनको भी एक्टिव किया और उन्होंने आगे किस चीज़ की फॉर्मेशन कर ली? डबल जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर ली है।